میں ہوں رشم اور میں ہوں سجاول اور ہم دونوں ہیں بہن بھائی برادرز اینڈ سسٹرز. آج ہم نے آپ سے ایک پرسنل بات کرنی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں پراپرٹی کی, جائیداد کی اور انہیریٹنس کی. اور اسپیسیفکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کتنا حصہ رائٹفلی بھائیوں کا ہونا چاہیے اور بہنوں کا ہونا چاہیے, اور کیا ہمیں یہ حصہ ملتا بھی ہے یا نہیں. اور آپ بھی زیادہ کول نہ بنے, ہمیں پتہ ہے جب بھی انہیریٹنس کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں اوور ویلمنگلی خواتین کو ہم ان کا رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو انہیریٹنس نہیں دے رہے. which does not make any sense, کیونکہ ہمارے دین میں بھی عورتوں کا پراپرٹی کا رائٹ ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق اگر آپ ایک عورت کو اس کا انہیریٹنس رائٹ نہیں دے رہے تو آپ ایک جرم کر رہے ہیں. اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے we did this episode, so let's find out. Actually نا اس کا صرف اتنا ہی پارٹ ہے. ایک سیکنڈ تم جاؤ. Let's find out. Press the bell icon on the YouTube app so you can get updates from Maati TV. Welcome to another episode of the Fortnightly Show. میں ہوں رشم وسیم. رشم اپنا کتنی دفعہ تعارف کراؤگی؟ اور یہ ہے میری انکریڈبلی روڈ ہوسٹ الوینا جدون. اگر آپ ہمارا کانٹینٹ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویلکم ٹو ماٹی ٹی وی. ہم ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جنہوں نے بہت زیادہ اپنا بجٹ آج اس سیٹ پہ لگا دیا ہے. ہمارا بیسکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی یوتھ کو ان کے ہیومن رائٹس پہ اویئرنیس کریٹ کریں, ہم ایک سیف اسپیس کریٹ کریں جہاں پر ہم کرٹیکل ڈسکورس کر سکیں. اور آج بھی ہم ایک ایسے ٹاپک پہ ہی بات کر رہے ہیں جس پہ کافی خواتین اسپیسیفکلی اس رائٹ سے محروم رہ جاتی ہیں, اس لیے ہم نے یہ شو بھی سوچا آپ بنائیں, which is the right to inheritance, the right to property. کچھ مہینوں پہلے ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے آؤٹ آف دا باکس, جس کے اندر ہم نے ایک اومبڈسپرسن کو بلایا جو پنجاب میں انہیریٹنس جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں ان پہ بات کرتی ہیں. اور جب ہم نے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا تو ہمیں اتنی زیادہ ڈائریکٹ میسیجز آئے, آپ لوگوں سے آئے, میرے اپنی کچھ دوستوں نے مجھے میسیج کیا, اور ان لڑکیوں نے میسیج کیا جن کو ان کی فیملیز نے ایکچولی ان کے رائٹ ٹو انہیریٹنس نہیں دیے گئے. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں یا ریاست پاکستان میں قوانین کیا موجود ہیں جو خواتین کو کیا گارنٹی بھی کرتے ہیں پراپرٹی رائٹس کے نہیں کرتے, مذہب کیا کہتا ہے آپ کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ خواتین کو ان کے پراپرٹی رائٹس مل بھی رہے ہیں کہ نہیں, اور آپ لوگ سچویشن جان کے تھوڑے افسوس ہی کریں گے ایکچولی. اینڈ دین ویل آلسو لک ایٹ کہ کلچر کس طرح سے اپنا رول پرفارم کرتا ہے. آپ کو کچھ ایسی بھی ریسورسز دیں گے جہاں پر آپ کو اپنے حق کے بارے میں زیادہ پتہ چل سکتا ہے, اور آپ کیا لیگل ایونیوز ہیں جس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں when you want to write for your inheritance. پاکستان میں جو لا کام کرتا ہے یا اویلیبل ہے فار دا ڈویژن آف یور پراپرٹی اور انہیریٹنس از دا مسلم انہیریٹنس لا. کوئی چیز کو انہیریٹ کرتا ہے تو اس میں صرف دو لوگ آتے ہیں, یا تو آپ کے خون کے رشتہ دار شامل ہیں which would mean essentially your immediate family and then extended family also. اس کے علاوہ یا تو آپ کے پھر اولاد ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے وارث ہوئیں گے essentially. وہ تقسیم کس طریقے سے کرنی ہے پھر وہ آ جاتا ہے شریعہ لاء کے انڈر. سو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایک فیملی ہے جس میں ایک ہسبینڈ, وائف, ڈاٹر اور سن ہے, اور اگر اس صورتحال میں دا ہسبینڈ پاسز اوے تو 1/8 آف دا پورشن گوز ٹو دا وائف, اور جو باقی ریمیننگ پراپرٹی ہے اس میں بیٹے کا شیئر ڈبل ہوگا بیٹی سے ان کمپیریزن. کیونکہ بیٹیوں کا جو آئیڈیا ہے of inheritance is based on the conventional setup where the baby gets married off, and so one share she gets from her father and one share she gets from the husband. اس طرح اس کے دو پورے ہو جاتے ہیں, اور مردوں کو گھر میں اس لیے دو مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے ادھر ہی رہنا. اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو یہ ساری لینا کی غلطی ہے, because اس میں سمجھانے کا کام اس کا تھا. اچھا, اور اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھے بھی سمجھا دو, مطلب میں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی. میتھس میری بھی بڑی کمزور ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو حصہ اسلام میں لڑکیوں کو ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا, اس لیے ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی. ایگزیکٹلی, اینڈ دا ریزن وائی وی ٹولڈ یو دا لا از کہ اگر آپ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یو ہیو نیور ڈن دس بفور, تو دین دا لا از دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ فیسیلیٹیٹ یو, آلدو اٹ از ناٹ دا اونلی وے ان وچ یو کین ٹرانسفر پراپرٹی. تو یہ انشور کرنے کے لیے کہ جو آپ کی جائیداد ہے وہ صحیح طریقے سے بغیر کسی رکاوٹوں کے, بغیر کسی پھڈے کے ٹرانسفر ہوئے, تو اس کے لیے دو اور مزید لاز ہیں. ایک ہے آپ کا مسلم فیملی انہیریٹنس آرڈیننس 1961 کا, اور دوسرا ہے آپ کا دا ویسٹ پاکستان مسلم
है पर्सनल लॉ 1962 का। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह के एसेट्स हैं जो आप अपने वारिस को या खूनी रिश्तेदारों को दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन के केसेस में ही होता है ना कि जहेज़ दे दिया जाता है और जहेज़ को कंसिडर किया जाता है कि बिकॉज वी स्पेंड सो मच ऑन द जहेज़ एंड द शादी एंड सो दैट्स व्हाट शी इज़ गेटिंग द डॉटर। बट एसेंशली व्हाट आप लोगों को समझने की क्या ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, सो अल्लाह ना करे। उन केसेस में ज़रूरी है कि आपके पास कोई इस तरह का एसेट हो जो आप क्या कहते हैं कैन हेल्प यू सेव योर लाइफ। अगर आपको अपने अब्बू की तरफ से उनकी पूरी जायदाद में से अपना राइटफुली इस्लामिक तरीके से जो राइटफुली हिस्सा है एटलीस्ट वो मिलना चाहिए, और उसमें उसके कुछ 2 डिविजन्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जैक्टली, सो वी हैव मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स में आपके पास कैश आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, व्हीकल्स आ सकती हैं, एनीथिंग दैट इज यू नो, स्टॉक भी हो सकते हैं या स्टॉक अगले में, अच्छा नहीं इसी में, अच्छा हाँ स्टॉक इसमें, सॉरी। इमूवेबल एसेट्स है, फिर उसके बाद जिसमें आपके पास आ जाती है रियल एस्टेट आ जाता है, लैंड आ जाती है, बिल्डिंग्स आ जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप आसानी से ट्रांसफर एसेंशली ना कर सकें। अगेन ये वही वजह है कि आप देख लें हर तरह की चीज़ ट्रांसफर हो सकती है, हर तरह की चीज़ आप इनहेरिट कर सकती हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ की तरफ से कि आपने बस जहेज ही लेना है एसेंशली। तो पाकिस्तान में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो कानून ये करता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ आपने इनहेरिट करनी है उसको नीलाम करेगा सबसे पहले आपकी आंखों के सामने, सब बेच देंगे, सब बिक जाएगा जी, सबको पता भी लग जाएगा कि आप फड्डे करते हैं आपसे फड्डे रिजॉल्व नहीं होते, मजाक कर रही हूँ। जो वारिस होते हैं उनको फिर हिस्सा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी कानून मौजूद है, या अगर जो डिसीज्ड पर्सन है उसने ऑलरेडी कोई विल असाइन की हो कि इतना इतना हिस्सा मिल रहा है तो उस केसेस में होता है कि उनकी विल के मुताबिक चला जाता है। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ आ गई है, लेकिन अगर कोई और कंफ्यूज्ड है तो कैन यू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल? ओके, सो आपकी और सजावल की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब ये दोनों बहन भाई हैं तो इनका कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सजावल फॉर इंस्टेंस सेज कि मैंने नहीं देनी है प्रॉपर्टी, तो कानून ये करेगा, वो कहेगा रिशम एंड सजावल आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको, फॉर एग्जांपल घर है, जी घर है, तो वो उसको बेच देंगे। अब जब घर बिक जाएगा तो फिर आपका जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा, या अगर आपके वालिद साहब ने ऑलरेडी कोई विल असाइन की हुई है कि इतना इतना इन दोनों को मिलना चाहिए तो फिर उसके मुताबिक मिल जाएगा। AGHS लीगल एड की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% खवातीन को उनकी राइट टू इनहेरिटेंस नहीं मिलता इस मुल्क में। दिसंबर 2021 में केपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 30 तमलीक के केसेस रिकॉर्ड किए थे। तमलीक कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ही अपने वरसा को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे। अब आप चेक करें कि इन केसेस में से सिर्फ 2 केसेस ऐसे थे जिसमें खवातीन को भी उनका प्रॉपर्टी का हक दिया गया था। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन की कुरान पाक से भी शादी करा दी जाती है ताकि जो भी उनका राइटफुल इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी में राइट है वो ख़ानदान में ही रहे और वो शादी करके उस चीज़ का बंटवारा ना कर ले। इस चीज़ को हक बख्शी भी कहते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सूबे में इस वक्त तकरीबन 5000 खवातीन हैं जिनकी शादी कुरान पाक से करा दी गई है। इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए 2021 में इन्फोर्समेंट ऑफ विमेंस प्रॉपर्टी राइट्स बिल पास किया गया था। ये बिल इस बात की गारंटी करता है कि स्पेसिफिकली खवातीन से उनका राइटफुल हिस्सा उनकी प्रॉपर्टी से किसी जोर जबरदस्ती से, किसी हरासमेंट या किसी धोखे से आप लोग नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, और इसी सिलसिले में उन्होंने ओम्बुड्सपर्सन का ऑफिस भी हर सूबे में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाब की बात करेंगे और इस ऑफिस को पंजाब में मिस नबीला हाकिम खान हेड कर रही हैं। दिस ऑफिस इज ऑल्सो देयर फॉर सेक्शुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं वो उनको भी सुन सकते हैं। ओम्बुड्सपर्सन की जो जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो राइट्स होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू एक जज, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, वो लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। नाउ वी वर वेरी लकी कि हमने मिस नबीला को अपने पॉडकास्ट में बुलाया। विरासत का अगर इंतकाल हो गया तो लगा देंगे, म्यूटेशन अगर हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो आप हमें बता सकते हैं कि ये फलां हर्डल आ रही है, वो हमारी विरासत का इंतकाल ट्रांसफ़र हमारे ऊपर नहीं कर रहे, फिर हम डीसीज़ को लिखते हैं कि जी इनकी ट्रांसफ़र करा दें और इनके नाम ये विदिन 10 डेज या 15 डेज इनका जो प्रोसीजर है विरासती इंतकाल का वो FRC लगी हुई अकॉर्डिंगली दे आर ड्यूटी बाउंड के उसको करें। बिल्कुल, सारे अटैच करके हमारे पास आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम बताते हैं कि अलवीना उसके ऊपर पोजेशन कर रख के बैठी हुई हैं तो मेरा हिस्सा नहीं दे रही है और रेशम कह सकती है मैं क्या करूं।
तो फिर हम कहते हैं कि भाई जो इसका जितना बनता है आप उसको उतना शेयर दें, हम उसको फिर दूसरी पार्टी को बुलाते हैं पहले रिस्पोंडेंट को, और उनको कोशिश करते हैं उनको मोटिवेट करें और उनको डायरेक्ट करें कि ये कानून है, इसके तहत आपको इनका पोजेशन देना पड़ेगा और ये इनके नाम के ऊपर चढ़ चुका हुआ है और आप इनको दें। बिल्कुल, अगर वो रिलेक्टेंट हो, और ज़्यादातर यही होता है, फिर हम डीसी को उसमें डायरेक्शन देते हैं कि ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड आर अटैच्ड, so you should have to take this matter yourself and resolve within 15 days or whatsoever direction देते हैं और report us। बिल्कुल, फिर उसमें ये प्रोसीजर को हम अडॉप्ट करें। और इस बिल की वजह से सिस्टम्स में चेंजेस आ रहे हैं। 100 डेज में हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आ गई थी। आप ये सोचो कि लोग इतनी जल्दी, और ये इशू इतना ज़्यादा है, हैरेसमेंट का इशू तो अपनी जगह है ना, वर्क प्लेस के हद तक है, ये तो हर एक घर का मसला है। क्या अगर लॉज मौजूद हैं और हमें पता है कि इस्लाम में भी ख़वातीन को ये हक मिल रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो हक मिलने से हमें रोकती है? और वो एट द एंड ऑफ द डे एक तरह से हमारा कल्चर भी आ जाता है क्या कि हमें शायद हमारे कल्चर में हमें ये बता दिया गया है कि ना मांगो, बुरी बात है, या शायद मर्दों को लगता है कि उनका हक छीन लिया जाए, उनसे हक छीन लिया गया है, या खवातीन ने क्या करना है प्रॉपर्टी का इफ दे आर प्रोवाइडिंग। तो ये कुछ हमारी अपनी कल्चरल नॉर्म्स हमने खुद सेट कर लिए हैं जो हमें रोकते हैं इस राइट को मांगने से। बिल्कुल, और इसको समझाने के लिए एक छोटा सा प्ले है, देखिए ना। साडी बिरादरी च धीयां ध्याणी नूं विरासत च कोई हिस्सा नहीं दिता वेंदा, ए कोई रिवाज कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋग हैं। हाँ जी, अगर यो दिया कोई कानून है भी सही तो असां पहले कलो लिखाई पढ़ाई करा गिनसूं ताकि बाद विच साडे वास्ते कोई मसला न थीवे। देखो जी, जमीन ते मां होंदी है, धीयां पराया धन। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਦਾਦ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮ ਤੇ ਤਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। और ये माइंड सेट जहाँ से इमर्ज करता है उसको हम कहते हैं पेट्रियार्की या पिदरशाही का निज़ाम, जिसमें एसेंशली ये है कि ख़वातीन जो हैं वो बराबर की इंसान नहीं है, और जब आप किसी को बराबर का इंसान नहीं समझते हो तो आप उस पर कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हो, और जब कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हो तो क्या चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी फ्रीडम या मोबिलिटी ले आएंगी। वो क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। पेट्रियार्की निज़ाम में हमने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि औरत को कंट्रोल करेगा मर्द। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी अपनी घरों में औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं शायद उनका बुरा इंटेंशन भी नहीं होती, बिकॉज ये चीज़ें हमारे दिमाग में इतने सालों से इनग्रेन्ड हैं कि इनसे अपने आप को डिसोसिएट करना, इनसे अपने आप को अलग करना, इनको समझने में भी देर लगती है। बिकॉज इट्स द चॉइस ऑफ दैट जेंडर टू डिसाइड कि मैं किस सिमत में जाना चाहती हूँ। अगर वो खुद मुख्तार होना चाहती हैं तो प्लीज़ उनको वो हक ज़रूर दें, और अगर शी वांट्स कि आप जिम्मेदारी उठाएं और आप भी उससे कंफर्टेबल हैं तो आप वो कर लें, कोई मसला नहीं है, बट it should be equal for everybody। काफ़ी दफ़ा जो हम खुद हैं, हम ख़वातीन हैं, वो भी अपना हक नहीं मांगती। हमें भी अपने हक मांगने में कभी कभी डर लगता है, कुछ रुकावटें होती हैं जो हम अपने लिए बना लेती हैं, एंड उस चीज़ को भी अगर हम एक फेयरली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहनों अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। Exactly। और इसके लिए हमारे पास एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ है, हाँ, इसके लिए हमारे पास एक वेलकम टू पाकिस्तान एवरीवन। सो एज आई वाज सेइंग बिफोर, मैं रूडली इंटरप्ट हुई थी लोड शेडिंग से, कि बहुत दफ़ा ख़वातीन ही हैं जो अपने राइट्स नहीं मांगती बिकॉज दे थिंक दे नॉट डिजर्विंग ऑफ इट। और इसके लिए एक लफ्ज़ भी है
जिस लफ्ज़ का नाम है इंटरनलाइज पेट्रियार्की, और ये मैडम आपको बताएंगे उसका मतलब। ख़वातीन खुद मान लेती हैं कि हम कमतर हैं, और जब आप कमतर अपने आप को मान लेंगे तो ना आप बराबरी के हकूक़ मांगेंगे, ना अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, ना अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी का तसव्वुर भी करेंगे। तो वंस यू स्टार्ट बिलीविंग कि आप भी बराबर हैं और आप भी बराबरी के हकूक़ रखती हैं, तो फिर आपके अंदर ये हिम्मत भी आएगी कि अपने लिए भी बेहतर सोचें और बेहतर मांगें। तो चलिए देखते हैं वो कुछ कौन से सवालात हैं जो शायद आपके जहन में गूंजते हैं जब आप अपने राइट मांगने लगती हैं या एक्चुअली नहीं मांगती। अगर मैं जायदाद में से हिस्सा मांगूंगी तो कहीं लोग मुझे बुरी औरत तो नहीं समझेंगे, कहीं अम्मा अब्बा भाई नाराज तो नहीं होंगे मेरे से, घर पे लड़ाई ना हो जाए। अगर मैं अपने घर में से हिस्सा मांगूंगी तो अपने भाई को बेघर कर दूंगी। बहन चिल करो थोड़ा, इस तरह सोचने की बजाय ऐसे क्यों नहीं सोचती? बाकी भाई भी तो जायदाद में अपना हिस्सा लेते हैं, उनको तो कोई बुरा नहीं समझता। अगर मैं अपना हक मांग रही हूँ जो मजहब और आइन दोनों ने दिया है, तो फिर मेरे घर वाले नाराज क्यों होंगे? अगर बड़े से घर के हिस्से करके उसको 2 छोटे घर बना दिए जाएं, तो सब आराम से रह सकते हैं। सबसे पहले तो आई फील लाइक मुझे अलवीना को हमारी एक्टिंग स्किल्स के लिए एक ऑस्कर मिलना चाहिए। ऋषम वसीम को ज़्यादा बड़ी एक्टर है। वो तो है। We are at the end of our video, तो जिन लोगों ने यहाँ तक देखी ये बहुत शुक्रिया। कोई अपना हक मांगने से बुरा इंसान नहीं बनता, लेकिन हाँ अगर आप किसी का हक उसको नहीं देते, उसे छीनते हैं, तो शायद तब आप एक बुरे इंसान हैं। यस प्लीज साडा हक ऐथे रख। ये वीडियो शेयर करें अपनी ख़वातीन सहेलियों के साथ ताकि वो भी आगाह हो सकें, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप किसी अपनी ज़िंदगी में अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी बीवियों को उनकी जायदाद में राइटफुल हक नहीं दे रहे, तो आप एक जुर्म कर रहे हैं। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर कंटेंट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माटी टीवी। मैं हूँ रिशम वसीम और ये है अलवीना जदून। व्हाटएवर, ओके बाय।